Hello students, how are you all? I hope all of you will be fine. Students, today I am going to read chapter number 2 of literature, which is a poem. And the name of the poem is A Little Grain of Gold. A Little Grain of Gold. This poem is written by Rabindranath Tagore. And the poet of this poem is Rabindranath Tagore. This poem, A Little Grain of Gold, is a kind of story, a small story with a moral. So let's start the poem. Before starting the poem, I want to clear, as you can see, that in this poem there is the picture of king, beggar, and golden chariot. As I want to explain that in this poem the speaker is beggar, who is using I word for himself, and he is talking with the king. So let's start the poem. I will read the paragraph firstly, and after that I will explain the meaning of difficult words, and then I will explain the sentence completely. I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. In this poem, the meaning of path is way. Way means rasta. Thy means your. Thy means your. As you can see in this box also, that the meanings are given here. Thy means your. Thy means your, right? Then the next word is chariot. Chariot means a conveyance. As you can see here, chariot means an open vehicle with two wheels pulled by horses used in ancient time. मीन्स एक घोड़ा गाड़ी होती थी जो दो पहियों की होती थी, रथ जिसको कहा जाता था, जिसको कौन खींचते थे? घोड़े, horses, right? In this distance, like a gorgeous means delightful. Gorgeous means delightful, very beautiful or attractive. As the meaning is written here also, very beautiful and attractive. बहुत ही सुंदर, खूबसूरत. Dream means सपना. And I wondered means thought, सोचना, right? So I'm going to explain it again. I had gone a begging from door to door in the village path. वो कहता है, जो पोइट है, जो बेगर है, वो क्या कहता है कि मैं घर घर जाकर, मैं जो है डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे तक, हर घर में, विलेज मतलब जा रहा था. कहाँ पर? विलेज के रास्ते से होता हुआ. When thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. कहता जैसे ही मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे आपकी, यहाँ दाई किसके लिए यूज़ किया गया? किंग के लिए. किंग से बात कर रहे हैं ना बेगर. वो कह रहे हैं कि तब मुझे अचानक जो है थोड़ी सी डिस्टेंस पर, इन द डिस्टेंस मीन्स थोड़ी दूरी पर, आपका क्या नज़र आया? गोल्डन चैरियट. गोल्डन चैरियट मीन्स आपका गोल्डन रथ, सुनहरा रथ नज़र आया. अपीयर्ड मीन्स नज़र आना, दिखाई देना. ठीक है. वो कैसे नज़र आया? जैसे कि मैं कोई डिलाइटफुल ड्रीम देख रहा हूँ, गॉर्जियस ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ.
तो क्या कह रहा है यहाँ पे, दोबारा मैं बता रही हूँ कि बेगर जो है एड्रेस कर रहा है, उसको बता रहा है, किंग से बात कर रहा है, उसे ये कह रहा है कि मैं जैसे ही गांव के रास्ते पर निकला डोर टू डोर बेगिंग के लिए, भीख के लिए, रास्ते में मैंने आप क्या देखा, थोड़ी सी दूरी पर मैंने आपका सुनहरा रथ आते हुए देखा, जो मुझे किसकी भांति लगा, एक बहुत ही खूबसूरत सपने की तरह लगा। आई वंडर्ड हु वॉज दिस किंग ऑफ किंग्स, वो कहते हैं आई वंडर्ड, मैंने सोचा, मैं हैरान हो गया, हु वॉज दिस किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स मीन्स यहाँ वो क्या कह रहा है, वो उसकी प्रेज कर रहा है राजा की। वो कहते हैं जैसे मैंने आपको देखा मैं तो हैरान हो गया, मैं सोचने लगा कि ये कौन राजाओं के राजा हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने आप को, उसको राजा को क्या कहा, गॉड की पदवी दी, मतलब सबसे बड़ा, मुझे तो आप बहुत महान नज़र आए कि ये कौन महान राजा है जो राजाओं का भी राजा है। नाउ माई होप्स रोज हाई एंड माई थॉट्स and methoughts my evil days were at the end, and I stood waiting for alms to be given unasked, and for wealth scattered on all sides in the dust. Now I am explaining the meaning of difficult words. Thought, first of all, this is a word hopes. Hopes means होता है आशा, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की चाह, आशा होना, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड इज थॉट, थॉट मीन्स मैंने सोचा, राइट, मेरी सोच में आया। ईविल मीन्स बैड, ईविल मीन्स बैड, राइट। एंड देन आर्म्स मीन्स एनी एनी टाइप ऑफ चैरिटी, आर्म्स में कुछ भी देना, चैरिटी देना, दान करना, जैसे क्लोथ्स हो गए, मनी हो गया, राइट। अनआस्क्ड एंड फॉर वेल्थ, वेल्थ मीन्स मनी, मनी मीन्स पैसा। Scattered means spread, as it's written here. Evil means bad, scattered means threw in random direction, मतलब थ्रोन मीन्स क्या होता है, गिरा हुआ, रैंडम डायरेक्शन मीन्स इधर उधर अस्त व्यस्त वे से गिरा होना, राइट। आर्म्स मीन्स राइट, मनी, क्लोथ्स, फूड दैट आर गिवन टू द पुअर people, that is called alms. As I explained it, charity means मतलब वहाँ पे money, क्लोथ्स या फूड या कुछ भी गरीब लोगों को जो दिया जाता है, राइट, जिसको कहते हैं भीख के टाइप में, राइट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। माई होप रोज हाई एंड मी थॉट माई इविल्स डेज वर एट द एंड। अब क्या कहता है भिखारी, क्या कहता है उसको, बेगर किंग को क्या बोलता है, वो कहता है कि मेरे को ऐसी आशा हुई, ऐसा लगा कि मेरी आशा जाग उठी। माई होप रोज हाई, मेरी आशा जागृत हो गई, जाग उठी। एंड मी थॉट मीन्स मैंने सोचा, यहाँ पर उसने मी किसके लिए यूज़ किया, अपने लिए, राइट। मेरी सोच में आया, माई इविल डेज वर एट एन एंड, कि मेरे इविल डेज मीन्स बुरे दिन ख़त्म होने जा रहे हैं। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड, और मैं किसके लिए खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया वो चैरिटी के लिए, ठीक है, जो मुझे बिना कहे मिलेगी, राइट। वो खड़ा हो गया कि मुझे अब तो कुछ मिलेगा राजा से, कपड़े, मनी, बहुत कुछ मिलेगा। एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, ठीक है, और मैं किसके लिए खड़ा हो गया, मनी के लिए, मुझे लगा, जो कि सारी तरफ डस्ट में मतलब स्प्रेड हुई है, गिरी हुई है। तो यहाँ पर जो पोएम है, इसमें जो बेगर है वो राजा से बात कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है, उसे बोल रहा है कि जैसे मैंने आपका गोल्डन रथ देखा, मेरे को एक ड्रीम जैसा लगा, और मुझे लगा कि ये राजाओं के राजा हैं, ये कौन है, और मेरी आशा जाग उठी, मुझे लगा कि मेरे बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे और आप मुझे भीख के रूप में बहुत सारा धन और क्लोथ्स वगैरह बिना मांगे दोगे। So students, I hope this poem is clear to you, and in my next video I will explain the next paragraph, next passage here, right. And for your work, what you should do, you should repeat the difficult words, and you should tell the meanings, you should learn the word meanings also, and you should read this passage again carefully. Got it? Thank you. Have a nice day ahead.
Stay healthy, stay home. Thank you, students. Goodbye.